Hello everyone. Today we will do the topic that is law of mass action, and in this topic we will use these brackets. हम ये bracket का use करेंगे and these brackets are known as the active mass. Active mass. Okay. So what is active mass? The amount of the reactant which actively take part in the chemical reaction is called the active mass, and this law is also only applicable for the reversible reaction. It is not applicable for the irreversible reaction. So law of mass action is applicable for reversible reactions. ओके इसी के लिए बस ये एप्लीकेबल है. अब हम देखते हैं, सपोज वी कंसीडर अ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी. राइट, जब ए प्लस बी रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है सी प्लस डी. दिस एरो शोज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस एरो शोज द बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, ये बैकवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है. अब क्या होता है, वी नो दैट rate of forward reaction is always equal to the rate of backward reaction in case of the reversible reaction. Then at the state of equilibrium की स्टेट पर वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं. अब हम लिखते हैं rate of forward reaction is directly proportional to the active mass of A and the active mass of B, as well as in the same way rate of backward reaction is directly proportional to active mass of C and active mass of D. Now what we will do, we will remove these constant sign and in place of this constant proportionality sign we will use the constant here. Okay, तो हम क्या यूज करेंगे, ROF is equal to rate constant for the forward reaction is active mass of A and active mass of B. In the same way, rate of backward reaction, the rate constant for backward reaction is active mass of C and active mass of D. Okay, now what it will happen at equilibrium, I have told you now. At equilibrium the rate of the forward reaction is equal to the rate of backward reaction. So ROF is equal to the ROB. Now we will put the values here. So KF rate constant for the forward reaction, हम इसकी वैल्यूज रख देंगे सीधा सीधा, is equal to the rate constant of the backward reaction. Okay, now Kf upon Kb will equal to the active mass of the products divided by the active masses of the reactant. Okay, now these two are constant, Kf and Kb are constant, so we will use a common constant here in place of it, so that will be K. Because this is established as equilibrium, so we can also use KE here, क्योंकि वो equilibrium पे हमें establish होके मिलेगा. Otherwise we use K only, simply K. So it is a rate constant here, rate constant. Okay, so it is at equilibrium. तो ये हमें, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं that K equal to active mass of products divided by active masses of reactants. Okay, this is according to the law of mass action. ये mass action के according हो गया. ठीक है, अब अगर हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते, व्हाट आर दैट, सपोज हमारे पास होता, सपोज हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B, C ऑफ C, D ऑफ D ऐसे होता, तो हम क्या करते कि एक्टिव मासेस ऑफ ए और बी, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके साथ यहाँ पर, इसका यहाँ पर,
इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर होता है, ठीक है ना। बस हम इसको सभी जगह लगा देते हैं। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे हमारे पास तब हम इसको इस तरीके से हमारा इक्वेशन हो जाएगी। ओके, हो सकता है किसी किसी बुक में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ हो, इसलिए मैंने बताया आपको। ओके, सो इट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। Kc, okay, rate constant for equation H2 plus Cl2 give rise to 2HCl। ठीक है, इसके लिए अगर लिखवाया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा Kc विल इक्वल टू वही एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट दैट इज HCl, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 बाय H2 1 मानेंगे इसको, और Cl2 को भी हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है, तो ये हमने इस रिएक्शन के लिए लिख लिया। अब Kc जो Kc की वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमको ये देखना है। ठीक है, तो Kc डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। ओके, सो Kc डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। Kc 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर रेट कांस्टेंट 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट फैक्टर इज दैट इज रिएक्शन स्टोइकोमेट्री। ठीक है, रिएक्शन स्टोइकोमेट्री, वही जो हम क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। ये क्या है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, नॉट प्रैक्टिकल, तो ये चेंज होता रहता है। एंड सेकेंड वन इज टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को चेंज करके Kc की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। एंड ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। ओके, इट इज नॉट वेरिएबल, तो ये प्रैक्टिकल है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, तो ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो Kc की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। फर्स्ट वन इज रिएक्शन स्टोइकोमेट्री एंड सेकेंड वन इज द टेम्परेचर। हम 2 तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, नाउ सी दिस प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम सेज इफ K बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, K को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले रहे हैं किसके लिए, फॉर रिएक्शन A प्लस बी give rise to C plus D. It is a reversible reaction. Okay, then equilibrium constant for, और रिवर्स रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें प्रूव करके दिखाना है दैट C plus D give rise to A plus B is 1 by K1। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है, हमने K1 लिया है यहाँ पर, राइट, इट इज K1। ठीक है, K1 लिया है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वो K1 by K1 होगा। इसको हमें यहाँ पर करके बताना है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है, तो हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं दैट इज A प्लस B, ओके, गिव C प्लस D। इसका रेट कांस्टेंट हमें दिया है K1, राइट। अब हम यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखें तो क्या लिखेंगे, रेट कांस्टेंट K1 इक्वल टू एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट बाय एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, यही लिखेंगे, राइट। ये लिख लिया हमने। अब क्या है, अब हमारा इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, C प्लस D गिव राइज टू A प्लस B। ठीक है, इसके लिए हमें क्या दिया है, सपोज हमने K2 मान लिया इसको। ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट हम क्या मान ले रहे हैं, K2। अगर ये K1 है तो ये रिवर्स रिएक्शन के लिए K2 हो गया। नाउ K2 रेट कांस्टेंट K2 विल बी लॉ ऑफ मास एक्शन, यहाँ पर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्टिव मास। अब रिवर्स रिएक्शन के लिए ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। जो हमारा इस साइड में जो भी आएगा वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या होगा, ये जो हमारा प्रोडक्ट था वो तो रिएक्टेंट बन जाएगा, और जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो इट विल बी एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट बाय एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, ये हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए इफ यहाँ पर A अपॉन
सी जो है, ठीक है, ए अपॉन सी की वैल्यू जो है, और यहाँ पर क्या है, सी अपॉन ए, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर ए अपॉन सी है और यहाँ पर क्या है, सी अपॉन ए है। तो इफ सी अपॉन ए इज इक्वल टू K1 है हमारे पास, तो ए अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/K1 हो जाएगा। अगर हमने इसको रिवर्स किया तो हमें इसको भी तो रेसिप्रोकल में करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो अगर हमारा ये ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो K2 इक्वल टू हमारा 1/K1 के बराबर अपने आप ही हो जाएगा, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। अभी वन प्रॉब्लम आई विल गिव यू एंड यू विल सॉल्व इट, आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ सी दिस न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम ऑल्सो, इट सेज दैट if K1 be equilibrium constant for P equilibrium sin Q and K2 for the reaction R2S, then equilibrium constant for P plus R give rise to Q plus S is K1 into K2। ये हमें प्रूव करके इनको बताना है कि इस गिवन डाटा से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इन लोगों ने रिएक्शन क्या दिया है, दे गेव अस द रिएक्शन दैट इज P प्लस R इक्विलिब्रियम साइन Q प्लस S। ओके, और ये हमको दिया है कि वो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, K1 इंटू K2, राइट। अब P इक्विलिब्रियम साइन Q, इसका जो वैल्यू है वो है, इसके लिए कांस्टेंट K1 है, एंड हम इस कांस्टेंट के लिए अगर इस वैल्यू को रखें एक्टिव मास ब्रैकेट्स में, तो कैसे रखेंगे, दैट एक्टिव मास ऑफ द Q मीन्स प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पर हमारा P रिएक्टेंट और Q प्रोडक्ट है। इन द सेम वे अगर हम दूसरा वाला लें R इक्विलिब्रियम साइन S, ओके, तो इसके लिए हमें K2 कांस्टेंट दे रखा है और इसके लिए हम वैल्यूज रखे हैं, तो वही S/R यही रखा जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो क्या है, आर रिएक्शन इज P प्लस R Q प्लस S। ठीक है, दिस इज अ रिएक्शन। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों कांस्टेंट के लिए अगर हम एक कॉमन कांस्टेंट लें, तो हम क्या लिया था, हम इसको ले सकते हैं K3। ओके, सो K3 विल इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब K3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ K1 इज व्हाट, K1 की वैल्यू हमारा Q बाय P और K2 का वैल्यू है हमारा S बाय R। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज है और ये K1 और K2 के बराबर है। तो अपना आप प्रूफ हो गया कि इस इक्वेशन के लिए, जो इस गिवन इक्वेशन के लिए कांस्टेंट जो वैल्यू है वो हमारे क्या आ जाएगा, K1 इंटू K2 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्फेरेंस फ्रॉम केसी वैल्यू। ठीक है ना, तो इट्स अ इन्फेरेंस ऑफ केसी वैल्यू, राइट। इसको देखते हैं। सपोज वी हैव अ इक्वेशन दैट इज A प्लस B, it's a reversible reaction C plus D of D। Okay, I have told you these are the stoichiometric coefficient। ये stoichiometric coefficient होते हैं जिनको हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना, अब इसके लिए जब हम इन्फेरेंस फ्रॉम केसी निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम नया टर्म यूज करेंगे दैट इज Q। वी आर यूजिंग Q हियर। ओके, तो हम इसके टर्म्स में हम इसका वैल्यू अगर लिखें इक्वेशन में, तो हम क्या लिखेंगे, हम वही सेम लिखेंगे दैट एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट बाय द रिएक्टेंट। ओके, हमने लिख दिया ये, और यही हम केसी की वैल्यू लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। तो हम केसी की वैल्यू लिखें इस इक्वेशन के लिए, तो क्या लिखेंगे, केसी इक्वल टू वही A टू दी, सॉरी हम इसको प्रोडक्ट को पहले लेंगे C टू दी पावर C
d to the power d by a to the power a एंड b to the power b। ये ले लिया। अब आप देखेंगे कि हमने दोनों वैल्यू एक जैसी लिखी, तो क्या अंतर हुआ q में और kc में। ठीक है, यही सोच रहे हैं ना हम कि हमने यहाँ तो वैल्यूज दोनों सेम लिखी हैं, जो हमने रेट कांस्टेंट के लिए ये वैल्यू लिखी है वही हमने q के लिए वैल्यू लिखी है, तो दोनों में डिफरेंस है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज दैट अगर हम q के लिए कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं या इक्वेशन की वैल्यूज लिखते हैं इस फॉर्म में, तो वो हम किसी भी इंस्टेंस पे लिख सकते हैं। ठीक है, बट जब भी हम केसी की वैल्यू लिखते हैं तो उसे हम सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको नोट कर देते हैं दैट क्यू कैन बी रिटन इन एट एनी इंस्टेंस। ओके, एट एनी इंस्टेंस। ठीक है, बट केसी विल बी यूज्ड एट इक्विलिब्रियम ओनली। ठीक है, तो हम दोनों में डिफरेंस समझ में आया। जब हम Q यूज कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, इट मीन्स हम इक्विलिब्रियम का वेट नहीं कर रहे हैं, हम कभी भी उस इक्वेशन को इस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट जब हम Kc यूज कर रहे हैं रेट कांस्टेंट, तब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इक्वेशन का वो एक्सप्रेशन वो इक्विलिब्रियम पे है, वो हमें समझ लेना है अपने आप। ठीक है, ओके। नाउ अब हमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझना बाकी है, दैट इज देखिए अगर हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है, मोर देन होता है 10 to the power 3, राइट। इसका मतलब ये होता है दैट रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी हमारा ज्यादा फॉर्म होगा। ठीक है, क्या मीनिंग है? इफ Kc has the value more than 10 to the power 3, it means what? That the value of K is high, so the product formation will be high. And इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? डोमिनेंट होगी। ठीक है, सो इस कंडीशन में क्या होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन विल डोमिनेंट। ठीक है, ऐसा होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज लेस देन 0.001, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 10 to the power -3। अगर Kc की वैल्यू इस वैल्यू से कम है तब क्या होगा हमारा? दैट Kc is less, it means what? The product formation is also less. This shows what? ये शो करता है कि backward reaction dominant है। So at this stage what is backward reaction is dominant। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि Kc की वैल्यू जब ज्यादा है दैट इज मोर देन 10 to the power 3, इट मीन्स व्हाट? फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट रहेगी, मीन्स प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बन रहा होगा। एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज लेस देन 10 to the power -3, इट मीन्स व्हाट? कि हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम और हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन इज क्या होगा? हमारा डोमिनेंट होगा। ठीक है, हमें समझ में आया ये वाली बात। अब if the value of Kc is moderate, ठीक है, if value of Kc is moderate, तब क्या होगा? मीन्स मॉडरेट हम यहाँ क्या ले रहे हैं? बिटवीन 10 to the power 3 to 10 to the power -3, इन दोनों के बीच में। तो ये कही जाएगी इक्विलिब्रियम की स्टेट। दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी इस समय पर। ठीक है, अब हम कुछ और समझते हैं, दैट इज व्हाट? हमको समझना है इफ द वैल्यू ऑफ Q इज मोर देन Kc। ठीक है, तो अगर Q का वैल्यू Kc से ज्यादा है, ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। ओके, तो इस कंडीशन में रिएक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर
हमारा क्या होगा, Q का वैल्यू कम हो Kc से, इफ Q इज लेस देन Kc, रेट कांस्टेंट Kc, तब क्या होगा कि रिएक्शन विल बी, अपोजिट कर देना है हमें इसका, सो रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन का होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा Kc जो हम बार बार ले रहे हैं वो क्या है हमारा, इट इज कांस्टेंट वैल्यू, रेट कांस्टेंट है ना कंसंट्रेशन की टर्म में। ठीक है, एंड Q क्या है, ये वेरिएबल है, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल, क्योंकि हम इसको रिएक्शन के किसी भी इंस्टेंस पे ले रहे हैं इसलिए। ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम चलते हैं किस पर, अब हम चलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नए टर्म पर, दैट इज Kp। अभी तक हमने क्या पढ़ा, Kc, और अब हम क्या पढ़ेंगे, Kp। ओके, तो हम लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। ठीक है, अब Kp और Kc में अंतर क्या है, देखिए Kc हम अभी तक यूज कर रहे थे किसके लिए, कंसंट्रेशन की टर्म्स में। ठीक है ना, तो लेकिन हम Kp जो यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, यहाँ पे जो K तो हमारा कांस्टेंट है, बट द P वी हैव टेकन दैट शोज द पार्शियल प्रेशर, एंड पार्शियल प्रेशर इज ओनली शोड बाय द गैसेस। वो लिक्विड नहीं शो करते, सॉलिड नहीं शो करते, वो सिर्फ कौन शो करता है, गैसेस शो करते हैं। तो इसमें जो हम Kp पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा P जो है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, इट इज पार्शियल प्रेशर। ओके, अब दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ठीक है, सो हम यहाँ लिख देते हैं ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है वो गैसेस ही क्रिएट करती है, उनके वेपर्स ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब Kc जो हम लेते थे वो किस में लेते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, हम Kc क्या लेते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसमें, कंसंट्रेशन की टर्म्स में, वो मैं बार बार आपको बोलती हुई आ रही हूँ। Kp लोगे जो, दैट इज वी आर टेकिंग फॉर द in terms of partial pressure, so especially we are studied for in case of gases। अब हम एक क्या ले लेते हैं, इक्वेशन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। हमारे पास इक्वेशन है सपोज, जिसमें सब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस होना चाहिए, दैट इज N2 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3। ठीक है, सब क्या है यहाँ पर, हमारा सब कुछ गैस है, दिस इज गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस। ठीक है, सब हमारा गैसेस फॉर्म में। अब हम इसके लिए Kp को अगर एक्सप्रेस करना चाहें, देखो हम Kc को कैसे एक्सप्रेस करते थे, अगर हम इसके लिए Kc एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे करते थे, हम करते थे प्रोडक्ट, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय N2, 1 लेंगे पावर क्योंकि कुछ भी नहीं है, और H2 के लिए यहाँ पे 3 लेंगे। ये तो हम Kc ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ना। अब Kp आ जाए, Kp हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हम Kp को एक्सप्रेस करेंगे इक्वल टू P, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 बाय, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 3। ठीक है, तो ये क्या है, हमने लिखा है इसको Kp के टर्म्स में, कोई अंतर नहीं है, हमने सिर्फ पार्शियल प्रेशर को यहाँ पर शो कर दिया है, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड। Kc में हम सिंपली ऐसे करते हैं, Kc में हम कंसंट्रेशन की टर्म्स में इस तरीके से करते हैं, और पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में वी आर टेकिंग पार्शियल प्रेशर हियर। ओके, कुछ भी अलग नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, हम समझें, इस पे फोकस करें। ठीक है, अब हम यहाँ पर नोट करें दैट Kc एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, Kc एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, while Kp expressed
in terms of partial फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलिए हम इसकी यूनिट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यूनिट हम कैसे निकालेंगे। फिर से हम इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, यूनिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है a ऑफ a प्लस b ऑफ b गिव राइज टू c ऑफ c प्लस d ऑफ d। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसके लिए हम kp एक्सप्रेस करें तो कैसे करेंगे। kp इक्वल टू p c टू पावर c और ये p d टू पावर d बाय, हम कंसंट्रेशन वो ले रहे हैं यहाँ पर रिएक्टेंट साइड, तो p a टू पावर a एंड p b टू पावर b। ठीक है, हमने इसको kp के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब हम पार्शियल प्रेशर या गैसेस का यूनिट ज़्यादातर हम एटीएम में यूज़ करते हैं, बार भी यूज़ होता है, लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं एटीएम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो आइडियल कंडीशन है। ठीक है, इसलिए तो हम अगर हम एटीएम रखें इसकी जगह इसकी यूनिट तो क्या रखेंगे, एटीएम सी, इसकी जगह भी रखा डी अपॉन एटीएम ए और एटीएम बी। ठीक है, हमने सबकी जगह यूनिट रख दी। अब हम लिखें यहाँ पर के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एटीएम। ठीक है, ये वैल्यूज को हम प्लस करके लिखें सी प्लस डी और इसको ऊपर ले जाएं तो ये होगा माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए जो हम कॉमन एक टर्म लिख सकते हैं दैट इज के पी इक्वल टू एटीएम डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी क्या है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट and stoichiometric coefficient of the reactant. So what is delta Ng here? It is difference between the stoichiometric coefficient of the product and stoichiometric coefficient of the reactant. ठीक है, समझ में आया हमको। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ठीक है, इसमें हम रिलेशन देखते हैं। चलो, अब वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एनी गैस इज PV इक्वल टू nRT। यही होता है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन किसी भी गैस के लिए यही होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट P इक्वल टू n अपॉन V RT, इस तरह भी लिखा जा सकता है। और जो ये n अपॉन V जो है ये क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम ये ब्रैकेट से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है ना, कंसंट्रेशन को हम इस ब्रैकेट से भी शो करते हैं, इसको कंसंट्रेशन ब्रैकेट भी बोला जा सकता है। ठीक है ना, चलो अब हम इसके आगे चलते हैं। सपोज हमारे पास एक गैसियस इक्वेशन है। ठीक है, दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक है, ये इक्वेशन है। और अगर हम इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लें तो ए ऑफ ए, बी ऑफ बी, सी ऑफ सी, डी ऑफ डी। ठीक है, ये ले लिया हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब अगर हम इस इक्वेशन को ए की टर्म्स में लिखें, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, दैट इज पी ए इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा P इक्वल टू सी आर टी भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है ना, और C की जगह हम कंसंट्रेशन लेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट्स यूज करेंगे तो P A इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, सी आर टी, और इसकी जगह हम वैल्यू रखेंगे तो P A इक्वल टू हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ A आर टी। अब हम इसके लिए लें, नेक्स्ट B के लिए भी ले लें तो ये हो जाएगा पी बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी।
पी सी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी और पी डी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हमने इस गैस आइडियल गैस इक्वेशन की टर्म्स में हमने इन वैल्यूज को रख दिया। ठीक है, अब हम इन सब वैल्यूज को केपी में रख दिया। केपी हमने ये लिखा है ना, ये केपी देखो ये ऐसे ही लिखा जाएगा ना। तो हम अगर इसमें ये सारी वैल्यूज जो यहाँ निकाली है उन्हें रख दें तो कैसे रखेंगे। ठीक है, के पी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं वैल्यूज को। पी सी पी डी। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल पुट दीज वैल्यू इन द एक्सप्रेशन ऑफ द केपी। ठीक है, तो हमारा केपी का एक्सप्रेशन वी आर राइटिंग हियर पी ए टू द पावर ए पी बी टू द पावर बी। ओके, नाउ वी विल राइट द वैल्यूज हियर। तो पी ए का वैल्यू क्या है, पी ए का वैल्यू है ए आर टी। ठीक है, हम यहाँ पर यही वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, और पी सी का वैल्यू क्या है, सी आर टी, हम वही वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं दैट के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, टू पावर सी आर टी। ठीक है, और इसमें कंसंट्रेशन ब्रैकेट लगाया हमने, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी आर टी। ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए आर टी, सॉरी इसको स्मॉल लिखना है, और कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी आर टी। ठीक है, ये वैल्यूज हमने रख दी। अब देखिए, अगर हम केसी की वैल्यू रखते, ठीक है, केसी की वैल्यू रखते तो हम केसी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम करते हैं सीधा सीधा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो हमने वही लिखा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है ऊपर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, नीचे है। तो मतलब हम इन वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, केसी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे। ठीक है, वी विल रिप्लेस दिस वैल्यू विथ केसी। के पी इक्वल टू क्या है हमारा, के सी आर टी टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब हम इसको किससे रिप्लेस करते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया आपको, इस वैल्यू को हम डेल्टा एन जी से रिप्लेस कर देंगे। तो के पी इक्वल टू हो जाएगा के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। तो ये जो हमारा हमने डिराइव किया, ये क्या है हमारा रिलेशन। अब एक बार और समझ लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए, वी नो दैट द आइडियल गैस इक्वेशन इज पी वी इक्वल टू एन आर टी। यही होती है ना आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, P इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी जो वैल्यू होती है वो कंसंट्रेशन से रिप्लेस की जा सकती है, बिकॉज इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन। तो हम और कंसंट्रेशन को हम इस ब्रैकेट से क्या करते हैं, शो करते हैं। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, अब हम इसको ब्रैकेट से रिप्लेस करते जाएंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन रिवर्सिबल इक्वेशन है, हमारे पास ये वैल्यू हमने निकाली है। तो अब क्या करें, हम सबके लिए पी ए पी बी पी सी पी डी सबके लिए हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो पी ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, यही हो गया ना। यहाँ सी की जगह हमें सबको कंसंट्रेशन करनी है, सबकी लिखनी है एक एक बारी। ठीक है, पी बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी, सी कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, पी डी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, के पी के एक्सप्रेशन में, ठीक है, पार्शियल प्रेशर रेट कांस्टेंट के हमें एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज को रखना है। तो पहले हम यही केपी का एक्सप्रेशन ले लें इक्वेशन के लिए। तो हमने लिया पी, यही हमें पता ही है। अब सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। अब हमें पता है अगर हम केसी की वैल्यू के लिए एक्सप्रेस करते तो कैसे करते, ये वैल्यूज रखते इन वैल्यूज को, इसलिए हमने केसी से रिप्लेस किया और ये आर टी के साथ हमने इन पावर्स को क्या करा, यहाँ पे रखा। अब इन पावर्स की जगह हम डेल्टा एन जी यूज कर सकते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी, और यही रिलेशन है बिटवीन के पी एंड के सी। ओके, सो enough for this video, and in next video we will do some problems, okay, based on it. Thank you so much.